Hello dear students, good morning. Myself Mahesh Punia, basically from Jaipur, Rajasthan. I'm here to teach you physics. Okay. I think in 10th syllabus according to NCERT there are 5 chapters. The very first chapter according to your syllabus, which is light, chapter number 10. Chapter number 10. So we are going to start that particular chapter right now. We all know at our earth around so many more years ago light is present over here, है ना. और we know there are so many more phenomena of light which we are going to observe in day by day life. So light is basically studied under the branch of physics known as optics. The branch of physics in which we are going to study about light, that is known as optics. It means optics is basically study of light. Study of light. स्टडी ऑफ लाइट. देखो एक्चुअली है क्या कि बेटा लाइट जो है वो बहुत काफी टाइम से अर्थ पे प्रेजेंट है. इट मीन्स जो साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने थ्योरीज और अपने अपने जो कंक्लूजन्स दिए उसके बेसिस पे लाइट को हमने फर्दर डिवाइड किया. तो लाइट जो है बेटा नेचर जो है वो 2 टाइप का होता है. लाइट जो है एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज wave nature. We know light has particle nature as well as wave nature. According to so many more scientists come and go, and they proved their theory of experiments on that particular basis. They decided that the nature of light is particle or wave. At last de Broglie came and he proved that light has a dual nature. Light has dual nature. It means particle as well as wave nature. We can prove so many more experiments which are based on the wave nature of particle or wave nature or particle nature. Okay, so light has dual nature. Light has, it means dual nature. Who proposed? De Broglie proposed. De Broglie proposed that light has dual nature. Okay, according to your syllabus we are going to discuss the phenomena of light. The phenomena of light, the very first phenomena of light is reflection. The very first phenomena is reflection. The other one is refraction, scattering, dispersion, interference, diffraction, polarization, and so many more. See, these are the basic phenomena which occurred by the light. The very first is reflection and refraction. Right now in this particular chapter we will focus on reflection and refraction. Reflection and रिफ्रैक्शन. अच्छा सर, हमने लाइट देखा है, लाइट के बारे में पढ़ा है, तो बेटा लाइट है क्या? एक्चुअली लाइट जो है बेटा वो किसी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी का रीजन है. वी नो देयर आर 2 रीजंस फॉर ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो विजिबिलिटी विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सी, if any object is placed in light, then that particular object is visible to us. That particular object is visible to us. So visibility of an object, there are 2 reasons. The very first reason is light. The very first reason is light, and the other reason is radiation due to its own temperature. Radiation due to its own temperature. Its own temperature. बेटा सिंपल सी बात है कि लाइट जो है वो क्या है कि सर लाइट जो है हमारा एक सेगमेंट है जिसको हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं. ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसको बोला जाता है कि स्टडी ऑफ लाइट. और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम बहुत कुछ है लाइट के बारे में, लेकिन हमारे सिलेबस में एक छोटा सा ब्रीफ सा चैप्टर है जिसमें सिर्फ हम अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ओके, जो लाइट जो बेटा आप अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करके आपको एक चॉक स्टिक जो है वो विजिबल है, तो उसका रीजन क्या है कि इसके ऊपर लाइट है, इसकी वजह से आपको विजिबल है. अच्छा, दूसरा और रीजन होता है विजिबिलिटी का, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज करके एक डार्क रूम है. क्या है? डार्क रूम है ना. और इस डार्क रूम में आपने रेड जो है रेड कलर का एक सीट रखा, मान लो रेड सीट रखा है, ठीक है.
अच्छा, एक उसी डार्क रूम में, सेम डार्क रूम में आपको रेड हॉट आयरन रखा, आपने क्या रखा? रेड हॉट आयरन. See, let you tell me, both colors are red na? Red sheet and red hot iron both are placed in a dark room where the sunlight or any kind of light is not present over there. So which one is visible to us? Which one is visible to us? We all know that we are going to put a red sheet as well as a red hot iron in a dark room. Then we are not capable to see that particular red sheet, but we are capable to see red hot iron. See, so this is the another reason for visibility of an object is radiation due to its own temperature. अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो डार्क रूम में रखा है, वहां लाइट नहीं है, फिर भी अगर वो आपको विजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि उसका खुद का टेम्परेचर इतना है कि वो उससे रेडिएशन एमिट कर रहा है और उस रेडिएशन एमिशन की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? विजिबल होगा. इट मींस आपको सिंपली लाइट के बारे में क्या करना है कि सर लाइट जो है वो ऑप्टिक्स ब्रांच होती है, उसके बारे में हम लाइट में, उसके अंडर में हम लाइट की स्टडी करते हैं. So optics is a branch of physics in which we are going to basically study of light. See, there are nature of light is dual nature. So light जो है वो dual nature होता है. Dual nature किसने प्रपोज किया था बेटा? तो dual nature जो है डी ब्रोगली ने प्रपोज किया था. dual nature बोले तो सर हमारे पास वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, और आपके सिलेबस में जो है बेटा वो वेव नेचर के बारे में हम वेव नेचर कंसिडर करते हुए हम उसके फिनोमिना पढ़ेंगे, वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ये सब फिनोमिना जो है उसकी वेव नेचर को कंसिडर करते हुए पढ़ाए जाते हैं बेटा. एक और जो फिनोमिना है होता है जो लाइट का, वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई, जो हम सोलार सेल या सोलार लाइट और सोलार प्लेट्स में जो यूज करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो मॉडर्न फिजिक्स 12th में पढ़ाया जाता है, तो वो आपको सिलेबस कंसिडर नहीं करना. वो ये जो पीई है बेटा ये लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है. अभी अपन जो लाइट की नेचर है ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर में हम किसको कंसीडर करेंगे? वेव नेचर को कंसीडर करेंगे. इट मींस आपको वेव के प्रॉपर्टीज आने चाहिए, वेव के प्रॉपर्टीज आने चाहिए ना. वेव इट मींस फॉर्म ऑफ एनर्जी. वेव को हम कैसा सिंपल कर सकते हैं कि एक फॉर्म है एनर्जी का जो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज वेव, है ना. ओके, सो हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में? हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. अच्छा सर, रिफ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इज डिफाइंड एज द बाउंस बैक ऑफ एन इंसिडेंट लाइट, बाउंस बैक ऑफ एन इंसिडेंट लाइट इनटू द सेम मीडिया, बाउंस बैक ऑफ एन इंसिडेंट लाइट इनटू द सेम मीडिया बाय एनी ऑब्स्टिकल और एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो आपको रिफ्लेक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन रखना है, आपको रटना नहीं कि बुक में क्या डेफिनेशन दिया है, कहाँ क्या डेफिनेशन दिया है. इवन आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट इन सिंपल टर्म्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सी, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्स्टिकल. Reflecting surface. See, according to definition of reflection of light, if an incident light ray, so this is incident light ray, incident light ray. If an incident light ray incidence like this on a reflecting surface, and it reflects or bounce back into the same media, bounce back into the same media. So this is known as reflecting ray. Yeah, reflected light ray. Reflected light ray. See, this is the normal. Normal, it is defined as the perpendicular to the surface at any point is known as normal. Perpendicular at any point of surface is known as normal. Okay, so there again I am going to repeat the reflection of light. It is defined as the bounce back of an incident light ray, bounce back of an incident light ray into the same media, bounce back of an incident light ray into the same media by any obstacle or any surface is known as reflection of light. सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर आपका कोई इंसिडेंट लाइट रे है वो सेम मीडिया में बाउंस बैक हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सरफेस से या किसी ऑब्स्टेकल से, तो वो फिनोमिना जो है लाइट का वो क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है. अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब इसके क्या क्या लॉज है ना, तो लॉज की बात कर लेते हैं. क्या बात करते हैं?
लॉज की। तो इसके बेटा दो लॉ है जो इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। पहला लॉ जो बोलता है वो बोलता है इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on same plane। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपका इंसिडेंट रे जो है वो बोर्ड के प्लेन में है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और आपका लाइट रे, ऐसा चला गया तो प्लेन चेंज हो जाएगा। इंसिडेंट रे का अगर प्लेन ये है तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल भी तीनों किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। तीनों के तीनों किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो होता है वो बोलता है कि एंगल आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। हियर आई जो है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। एंगल आई जो है बेटा यहां मैं लिख देता हूं, एंगल आई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एंगल आर जो है वो क्या है बेटा, तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी एंगल आई और एंगल आर। तो आप बोलोगे सर एंगल आई और आर है कौन से, तो अब मैं आपको बता दूं बेटा ऑप्टिक्स में हम जहां भी एंगल मेजर करेंगे वो एंगल ऑल द एंगल्स आर शुड बी मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। तो एंगल जो भी मेजर करेंगे वो हम कहां से मेजर करेंगे, नॉर्मल से मेजर करेंगे। नॉर्मल आपको बताया कि नॉर्मल क्या है, किसी सरफेस के किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है, नॉर्मल। परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ एनी सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल होता है उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन ए सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। सेकंड ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये दो लॉ है कि आपका जो दोनों लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ बोलता है तीनों एक प्लेन में होने चाहिए, दूसरा बोलता है एंगल आई ऑलवेज शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। अच्छा, अब जो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के बेसिक फिनोमेना आप सब लोग जानते हैं कि आप मिरर में अपना सुबह सुबह फेस जब वॉश करने के बाद अगर आपको कॉम्ब करना होता है तो आप मिरर यूज करते हैं, तो मिरर में आपका मिरर इमेज दिखता है। इट मींस वो क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो, दैट इज नोन एज फिनोमेना ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, the next topic in that this particular reflection is spherical mirrors, spherical mirrors. See, there are so many more type of mirrors, but in our syllabus there are two type of mirrors which is known as a spherical mirror, concave as well as convex. So there are two type of spherical mirror, concave और कॉन्वेक्स। सी बेटा अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों का डिजाइन सेम होता है, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स, बट दोनों में जो डिफरेंस होता है बेटा वो होता है कि कॉनकेव का आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड होता है, मतलब इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। मतलब ये वाला जो साइड है बेटा वो कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड है ना। कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा कि इसका जो इनर साइड है वो पॉलिश्ड होता है, इनर साइड जो है वो पॉलिश्ड होगा, तो आपका क्या होगा, आउटर साइड जो होगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, है ना। आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होगा। सर ये जो स्पेरिकल मिरर्स है तो इनमें कुछ नोटेशंस होंगे, हाँ बेटा नोटेशंस होंगे, नो डाउट। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, दोनों में कॉमन नोटेशंस है। स्पेरिकल मिरर क्या है, तो बेटा ये किसी स्पेरिकल सेल का पार्ट है। स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ एनी स्पेरिकल सेल। सी स्पेरिकल मिरर जो है किसी स्पेरिकल सेल का पार्ट है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं तो बेटा ये 3D में क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। अच्छा, मेरे पास कोई स्पेरिकल सेल था, उसका मैंने एक पार्ट कट किया
और उस पार्ट को कट करके अगर मैंने आउटर साइड को पॉलिश कर दिया तो ये मेरा कॉनकेव बन गया। अगर मैंने इनर साइड को पॉलिश किया तो ये कौन सा बन गया, मेरा कॉन्वेक्स बन गया। इट मींस इनर साइड को मैंने पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, वो अपने पर डिपेंड करता है। तो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा तो कॉन्वेक्स होगा, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होगा तो कॉनकेव होगा। अच्छा सर, इसमें कुछ कुछ नोटेशंस होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है बेटा पोल होता है। पी क्या होता है, पोल होता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पी जो स्टैंड्स है पोल के लिए। अच्छा, फिर सी जो होता है बेटा वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं आपको डिफाइन करूंगा पी सी क्या होते हैं सब बेटा। फिर सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाता है उसको, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको आर से डिनोट किया जाता है, और आर होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट से पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है बेटा स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। अच्छा बेटा, ये जो एक लाइन होती है, द एक्सिस विच पासेस थ्रू सी एंड एफ एंड पी, द एक्सिस विच पासेस थ्रू सी एफ एंड पी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलर नोटेशंस आपके जो होंगे बेटा वो किसके लिए होंगे, कॉन्वेक्स के लिए होंगे। तो ये आपका पी रहा होगा, ये आपका फोकस पॉइंट हुआ होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये आपकी फोकल लेंथ है ना। आपको सिंपल नोटेशन आप बोलोगे सर स्फेरिकल मिरर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। बोथ टाइप ऑफ मिरर्स आर पार्ट ऑफ एनी स्फेरिकल सेल, It depends on us that what side we are going to polish or color. Then the opposite side will be act as reflecting side. So according to that, there are two type of mirror, concave as well as convex. In concave side, the outer side is polished, whereas inner side is reflecting side. In convex, the inner side is polished, then the outer side is reflecting side. Okay. See, the basic notations for concave and convex, both type of mirrors are P, known as pole. Pole, it is defined as the midpoint of spherical cell is known as pole. I'm going to define one by one to all. The very first P, which is pole, is defined as the midpoint of spherical cell is known as, the midpoint of spherical mirror is known as pole. P stands for pole, is defined as the midpoint of spherical mirror is known as pole. C, center of curvature. We all know that both of these type of spherical mirrors are the part of any spherical sail. So the center of that particular sphere is known as center of curvature. See बेटा, curvature का मतलब होता है part of curve. Curvature जो होता है वो क्या होता है, part of curve. सी आपका स्पीयर जो है वो एक कर्व है, उसका पार्ट जो मैंने कट किया तो उसको बोला जाता है कर्वेचर इट मींस पार्ट ऑफ एनी कर्व. ओके, सो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट इज दिस स्पेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. उस स्पीयर का सेंटर जिसका ये पार्ट कट किया गया है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ओके, the midpoint of C and P, the midpoint of C and P is known as focus. और अपन ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, if the incident rays are parallel to principal axis, if the incident rays are parallel to principal axis, then they intersect at a certain point, which is known as focus point. सो फोकस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बेटा हमें बोला गया प्रिंसिपल फोकस. क्या बोला गया, प्रिंसिपल फोकस. अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा जो है आपका रेडियस है उस स्पीयर का जिसका ये पार्ट है. इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ ए स्पीयर whose part is this spherical mirror. Okay, so radius of curvature जो है बेटा वो क्या है, CP डिस्टेंस है. क्या है, CP डिस्टेंस, और वो कितना है, R के बराबर है ना. फोकल लेंथ जो प्रिंसिपल, अच्छा फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट फ्रॉम P, pole, द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम pole इज नोन एज फोकल लेंथ.
तो ये जो है बेटा आपका P से आपका जो F का डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, स्मॉल f है, जिसको आपने क्या बोला गया, फोकल लेंथ बोला गया। सिमिलर है दोनों टाइप ऑफ मिरर्स के लिए सब नोटेशंस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस विच पासेस थ्रू C, F and P is known as principal axis. The axis which passes through C, F and P is known as principal axis. Okay, so these are the basic notations for spherical mirror, concave as well as convex. Okay, so right now we are going to discuss about the image formation by spherical mirrors. Image formation by spherical mirrors and rules for image formation by spherical mirror. अच्छा, सबसे पहले आपने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंस बैक ऑफ एनी इंसिडेंट लाइट रे इनटू द सेम मीडिया बाय एनी ऑब्स्टिकल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द वेरी फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in a same plane. The other one is the angle of incidence always should be equals to angle of reflection. Angle I always equals to angle R. After that we had discussed about two type of spherical mirrors, concave as well as convex. Right now rules for image formation. Rules for image formation by spherical mirrors. By spherical mirrors. सी आपके जो स्पेरिकल मिरर है उससे इमेज फॉर्म करना है अपने को, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशंस पे पुट करके आपको क्या करना है, इमेज फॉर्म करना है। तो वो इमेज फॉर्म करने से पहले हमें क्या करना है कि उसके रूल्स क्या क्या होने चाहिए, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या होने चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट रूल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है, if the incident rays are parallel to principal axis, if the incident rays are parallel to principal axis, then after reflection they will pass through principal focus. See, if the, ये P है आपका बेटा, ये आपका F फोकस पॉइंट है। if the incident rays are parallel to principal axis, if the incident rays are parallel to principal axis, then after reflection they will pass through principal focus. It means अगर आपकी incident rays जो है बेटा वो क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। ये बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस, दे विल पास थ्रू फोकस। तो ये जो इंसिडेंट रे थी वो फोकस से पास कर गई, और ये भी कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से पास करेगी। द वेरी फर्स्ट एंड सिंपल रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, सी इंसिडेंट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं अपन। कॉन्वेक्स में क्या है बेटा कि देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो वी ऑल नो दैट वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। सी अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, तो अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है, इंसिडेंट रेज पैरेलल है, तो ये क्या होगा बेटा, ये लो, ये तो पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये आपका ये फोकस पॉइंट है, तो ये फोकस पॉइंट से क्या है, प्रिंसिपल फोकल है, ये आपका P है। तो ये क्या होनी चाहिए कि अब देखो, इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, whereas in case of convex mirror they seems to be passing through focus, they seems to be passing through focus. It means ऐसा लगेगा कि ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। सेम इधर भी ऐसा लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर गई, फोकस से। कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पैरेलल है, तो इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस, है ना। कि तो सिंपल सा लॉजिक है। पहला लो ये बोलता है इमेज फॉर्मेशन का, अगर आपकी इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे विल पास through principal focus in case of concave mirror, whereas they seems to be passing through principal focus after reflection in case of convex. Okay, the second law ये बोलता है, इसका वाइस वर्सा है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि if the incident rays incidence through focus, if the incident rays incidence through focus, if incident rays incidence through focus, suppose this is the focus point, if incident rays incidence through focus,
सी ये इंसिडेंस हो रहा है तो ये कहां से हो रहा है, फोकस से। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है बेटा, देखिए उसका अपोजिट है। पहले वाला क्या था कि अगर पैरेलल इंसिडेंस है तो फोकस से पास करेगी। अब सेकंड रूल क्या है कि इसका वाइस वर्सा, इट मींस द इंसिडेंट रेज इंसिडेंस थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इस केस की बात कर लेते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स में होते तो कॉन्वेक्स में क्या होता बेटा कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस यहां कहीं रहा होगा। तो अगर मैं इसको इंसिडेंट रे जो था वो अगर फोकस से आता, कहां से आता बेटा, फोकस से आता, यहां से, ये इंसिडेंस थ्रू फोकस हो रहा है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है ना। एक्चुअल में अब वी नो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि बाउंस बैक हो जाए सेम मीडिया में। अब यहां ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मिरर से डायरेक्ट उसको पेनिट्रेट करके अपनी रे है वो अपोजिट साइड चली गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मिरर है बेटा, ग्लास होता तो ग्लास को अगर हम एक साइड से पॉलिश कर देंगे, सपोज करके ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हमने एक साइड से उसको पॉलिश कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिरर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो बाउंस बैक होगा सेम लाइट का। तो अगर इफ द इंसिडेंट रे इंसिडेंस थ्रू फोकस, अगर ये फोकस के थ्रू इंसिडेंस हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल जो बोलता है बेटा आपका, ये बोलता है कि इफ द इंसिडेंट रे इंसिडेंस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ द इंसिडेंट रेज इंसिडेंस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दे विल रिट्रेस इट्स पाथ, देन दे विल रिट्रेस इट्स पाथ। इसका मतलब क्या है बेटा, आपका ये पोल है, ये आपका फोकस पॉइंट है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपकी कोई रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंसिडेंस होती है, किससे, सी से अगर इंसिडेंस हो रही है तो ये इंसिडेंट रे थी तो वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करती है। मतलब सी से आ रही है तो सी से ही जाएगी, सी से आ रही है तो कहां से जाएगी, सी से ही जाएगी। क्यों जाएगी, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक देता हूं। मान लो कि आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से अगर आप, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अच्छा, नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल से जो रे आई वो नॉर्मल से वापस चलेगी। अच्छा, नॉर्मल से कोई रे आई तो एंगल आई कितना हो गया, 0। भाई नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल की पैरेलल जो आपकी रे आएगी तो उसके लिए एंगल ऑफ आई कितना हुआ, 0, क्योंकि वी आर गोइंग टू वी हैव टू मेजर एंगल ऑफ आई एंड आर थ्रू नॉर्मल। सो नॉर्मल के पैरेलल कोई रे आई तो उसका आई कितना हो गया, आर, और अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन आर भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आई 0 तो आर 0 के केस में क्या कि जब ये ऐसे आएगी तो ऐसे ही जाएगी। इट मींस इफ द इंसिडेंट रे इंसिडेंस थ्रू फोकस, if the incident ray incidence through center of curvature, then they will retrace its path। इसका मतलब ये है कि जहां से C से अगर कोई रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद C से ही पास करेगी। अगर मैं किसकी बात करता हूं, कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं बेटा। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा कि ये आपका सपोज कर C है और ये आपका F है ना, ये आपका P है। तो अगर इस केस में अगर आपकी कोई रे है वो C से आ रही है, कहां से आ रही है, C से आ रही है, तो मतलब ये ऐसे कहीं आती हुई दिखेगी, ये C से आ रही है तो ये C से जा रही थी तो C से वापस बाउंस बैक हो जाएगी, है ना। सो दीज आर द सिंपल रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। Again, I am going to repeat the very first rule. If the incident rays are parallel to principal axis, then after reflection they will pass through focus in case of concave mirror, whereas they seems to be passing through focus in case of convex mirror. Okay, the vice versa of first law, the vice versa of first rule is second rule. According to this, if the incident rays incidence through focus or seems to be incidence through focus, then after reflection they will pass parallel to principal axis. They will pass parallel to principal axis. The third rule is of image formation by spherical mirror is if the incident rays incidence through center of curvature C, then they retrace its path, or we can say then after reflection they will pass through C itself. अगर C से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, C से जाएगी। ओके, सो इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग रूल्स हैं तो अपन ये देख लिए हैं। अब इमेज फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा, किस साइज का बनेगा, क्या उसका नेचर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।